Okay, so today we will be discussing the answering technique of 12 mark question. And the question you can see on the screen right now is assess whether monetary policy is the best way to control inflation. So distribution of marks for 12 mark question in paper 2 AS economics is we have to answer 3 assessment objectives: assessment objective 1, assessment objective 2, assessment objective 3. Assessment objective 1 is knowledge and understanding of the concept given in the statement of question. Assessment objective 2 is analysis. And assessment objective 3 is evaluation. And distribution of marks is shown here. Assessment objective 1 plus assessment objective 2 collectively make 8 marks. अब इसमें आपके पास ऑप्शन है, you can give more knowledge. Assessment objective 1 is knowledge. Assessment objective 2 is analysis. So you can give more knowledge, less analysis, or more analysis, less knowledge. So it totally depends on you. And sometimes it also depends upon nature of the question as well. कुछ questions ऐसे होते हैं जिनमें knowledge ज़्यादा होते हैं और analysis उतना ज़्यादा नहीं होता, और कुछ questions हैं जहाँ पे analysis आप ज़्यादा कर सकते हैं और knowledge उतना ज़्यादा नहीं होता. सो एग्जामिनर आपको थोड़ी लिबर्टी देता है कि आप असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 के बारे में ज़्यादा लिख दें, 2 के बारे में कम लिखें, या 2 के बारे में ज़्यादा लिख दें, 1 के बारे में कम लिख दें. सो इट्स टोटली अप टू यू. लेकिन कलेक्टिवली एग्जामिनर आपको इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को मिला के 8 मार्क्स देता है. और इवेल्युएशन जो है इसके 4 मार्क्स होते हैं. बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से आपको नॉलेज में, यानी इस फर्स्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव में लिखना क्या होगा. सो इस क्वेश्चन में से आप की वर्ड्स या आप की कंटेंट ढूंढेंगे कि क्या क्या की कंटेंट है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे. जैसे यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताएं कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है. ये बेसिकली नॉलेज का पार्ट है. उसके बाद हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाता है. इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नॉलेज, इसके बारे में बताएंगे. सो ये दो चीज़ें आपकी नॉलेज के अंदर आ जाएंगी. सो मॉनेटरी पॉलिसी को सबसे पहले आप डिफाइन कर दें. मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू the policy of central bank of the country that manipulates money supply, interest rate, and credit regulations to influence aggregate demand. So this is a demand side policy. And next you have to explain what inflation is. Inflation is, first of all, you have to define monetary policy. Then you have to define inflation. Inflation is the persistent rise in general price level over time. It reduces purchasing power of money, right? This is basic definition of inflation. And then you may identify causes of inflation as well. You may say that inflation may be caused by increase in aggregate demand. That is called demand pull inflation. Demand pull inflation. And the other cause of inflation is rise in cost of production. So that is called cost push inflation. So you can give basic idea of what demand pull inflation is and what cost push inflation is. And now moving to the analysis part, all of this basically is relevant to knowledge, right? And then is analysis. Analysis में आपको क्या बताना होगा? You have to connect the impact of monetary policy on inflation. आपको बताना होगा कि how monetary policy can control inflation. Analysis में हम क्या लिखते हैं? How और why को आंसर करते हैं. How monetary policy controls inflation. इसकी justification देनी होगी. So you have to basically explain the examiner कि how this policy is effective to control inflation. तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं?
इसके अंदर एनालिसिस में आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, एनालिसिस में आप ग्राफ्स भी बना सकते हैं। ओके, सो आप बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं, बेसिक टूल्स हैं, उनमें लाइक मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई आई एम यूजिंग एमएस फॉर मनी सप्लाई। इंटरेस्ट रेट के लिए मैं आर यूज कर रहा हूँ। और एक होते हैं क्रेडिट रेगुलेशंस, उसके लिए वैसे शॉर्ट फॉर्म में सी आर लिख रहा हूँ। वैसे ये स्टैंडर्ड एब्रिवेशंस नहीं है, जस्ट वैसे अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को आपको कम करना होगा। मनी सप्लाई कम होगी, ओवरऑल लोगों के पास कैश इन हैंड कम होगा, तो लोग ज़्यादा स्पेंड भी कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड अगर कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। अच्छा, जेन में रखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान का जैसे सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ओके, सो इंटरेस्ट रेट अगर सेंट्रल बैंक बढ़ा देगा तो लोग सेविंग की तरफ चले जाएंगे, लाइक सेविंग्स विल राइज, सेविंग्स राइज हो जाएंगी। और लोगों की स्पेंडिंग्स कम हो जाएंगी, लोग खर्च कम करेंगे। नेचुरल सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा होगा लोग प्रेफर करेंगे कि बैंक में पैसे सेव करके इंटरेस्ट ज़्यादा कमा लें, इसलिए सेविंग्स बढ़ जाएंगी। और स्पेंड कम करेंगे क्योंकि लोन्स लेना उनके लिए एक्सपेंसिव होगा, लोन्स नहीं लेंगे तो स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी। क्रेडिट रेगुलेशंस नेक्स्ट पॉइंट है। क्रेडिट रेगुलेशन का मतलब है कि बैंक से लोन लेने के लिए आपको किन रूल्स से, किन डॉक्यूमेंटेशन से, किन प्रोसीजर से गुजरना होता है। अगर सेंट्रल बैंक चाहे कि लोग कम लोन्स लें, स्पेंडिंग कम करें, इन्वेस्टर इन्वेस्ट कम करे, तो ये क्रेडिट रेगुलेशंस को टफ कर देते हैं। क्रेडिट रेगुलेशंस टफ करने का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि लोन लेने के लिए जो रूल्स होंगे वो डिफिकल्ट होंगे, प्रोसीजर्स मुश्किल होंगे, कस्टमर्स को ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर बैंक से लोन चाहिए, मैंने घर बनाना है लेट्स से, और बैंक की नीयत नहीं है मुझे लोन देने के लिए, तो वो क्रेडिट रेगुलेशंस को टफ कर देगा। बैंक कहेगा कि जी ये रिक्वायरमेंट पूरी करें, वो करें, स्टेटमेंट्स लेके आए, सैलरी स्लिप्स लेके आए, अपनी पूरी पिछले 6 महीने की अपनी इनकम का रिकॉर्ड लेके आए, एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड लेके आए। मतलब आपको इस तरह डॉक्यूमेंटेशन में वो ट्रैप करके रखते हैं। सो एज अ रिजल्ट लोग फिर बैंक से अवॉइड करते हैं, बैंक क्योंकि बैंक इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है, तो फिर लोग लोन से भाग जाते हैं, वो लोन लेते ही नहीं। सो क्रेडिट रेगुलेशंस को सेंट्रल बैंक डिफिकल्ट बना देगा, कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, और कॉम्प्लेक्स बना देगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बना देगा, तो लोग लोन्स कम लेंगे। ठीक है, सो फिर लोन्स अगर लोग कम लेंगे, लोन्स अगर डिक्रीज करेंगे, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर इन्वेस्टर लोन लेके इन्वेस्ट कर रहा होता है, इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी, कंज्यूमर की कंजम्पशन कम हो जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल डिक्रीज करेगी। एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज क्यों करेगी? बिकॉज वी नो कि एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। अगर कंजम्पशन कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। अब इस सारे फिनोमिना को एनालाइज करने के लिए आप ग्राफ भी बना सकते हैं, और प्रेफरेबली ग्राफ बनाएं अगर आपको सही ग्राफ बनाना आता है, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको बाउंड नहीं किया ग्राफ बनाने के लिए, बट एग्जामिनर आपसे आपको रिवॉर्ड देगा इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं। सो एक्स पे हम लिखेंगे रियल जीडीपी और वाई पे हम लिखेंगे प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मैक्रो इकोनॉमी में जेन में रखें, यहाँ पे सिर्फ प्राइस नहीं लिख सकते, प्राइस लेवल लिखना होता है। एक्स पे क्वांटिटी नहीं लिख सकते, रियल जीडीपी या फिर आउटपुट लिखना होता है, आउटपुट। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे जस्ट प्राइस लिख दें, तो एग्जामिनर उसको गलत कर देता है स्ट्रेट अवे। एग्रीगेट डिमांड इस तरह से नेगेटिवली स्लोप्ड होती है और एग्रीगेट सप्लाई इस तरह से पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है। जहां पे दोनों मीट करेंगे दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट।
Equilibrium price level is P. Equilibrium real GDP is Y. Now, if there is decrease in aggregate demand because of all these components, क्योंकि कंजम्पशन कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी. एग्रीगेट डिमांड जब कम होती है, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट तो AD1, नया इक्विलिब्रियम आपका E1 पे फॉर्म होगा एंड न्यू प्राइस लेवल इज P1 एंड रियल GDP इज Y1. अब आपके पास प्राइस कम हो गई है, सो मॉनेटरी पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी थी जिसने लोगों के लिए लोन्स लेना मुश्किल कर दिया, सेविंग्स की तरफ लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो उस पॉलिसी ने अल्टीमेटली जाके एग्रीगेट डिमांड को डिक्लाइन किया और प्राइसेस को कम किया. जब प्राइसेस कम होती है तो हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड. सो इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड. सो on one side we are saying that monetary policy has effectively controlled the rate of inflation in the country. But we have to still write on the third option, third assessment objective as well. That is assessment objective 3, and that is called evaluation. 12 मार्क्स और 8 मार्क्स में इवेल्युएशन का फर्क होता है. यहाँ पे 8 मार्क्स की इवेल्युएशन की मैं बात अभी नहीं करूंगा, अदरवाइज दैट विल कंफ्यूज यू. Currently I'll completely talk about evaluation of 12 mark question. Assessment objective 3 is evaluation. Evaluation में 12 मार्क क्वेश्चन में आपको पॉलिसी के अगेंस्ट लिखना होता है एंड देन एंड पे कंक्लूड करना होता है. सपोज करें इवैल्यूएशन में आपको क्या बताना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी may not control inflation, may not control inflation due to certain reasons. ठीक है, और वो रीजंस क्या हो सकती हैं वो आप एक्सप्लेन करेंगे इवैल्यूएशन में. जी, एक रीजन क्या हो सकती है कि मॉनेटरी पॉलिसी उतना इफेक्टिव ना हो. मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टेक्स मोर टाइम टू ब्रिंग एन इम्पैक्ट ऑन एन इकोनॉमी. जी, मॉनेटरी पॉलिसी टेक्स मोर टाइम टू ब्रिंग एन इकोनॉमी, ब्रिंग एन इम्पैक्ट ऑन एन इकोनॉमी. सो इसलिए ये इनइफेक्टिव हो सकती है. ओके, सो द लास्ट थिंग इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3. एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 में जो लास्ट पार्ट होता है इवैल्यूएशन का, जो एंडिंग पॉइंट है, दैट इज कंक्लूजन. इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे? वी विल जस्ट से दैट इन कंक्लूजन monetary policy is a good tool to control demand pull inflation. However, it would not be that effective if it is not supported by the fiscal policy that is also a demand side policy. ठीक है, तो इसी तरह से आप बताएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट effective to control cost push inflation. So इसके साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. So I believe कि you got a clear idea कि how to answer this question, 12 mark question, and how should you write assessment objective 1 and assessment objective 2 and then assessment objective 3. Okay, so this is it. I'll be explaining the 8 mark questions, scheme for 8 mark question in the next video.